Hello everyone and welcome back to the Science Hub. Today's topic is somatometry, which is a part of a forensic anthropology. Somatometry, it is made up of two words, somato and metric. Somato refers to the living human body and metric refers to the measurements. Here on the figure we can see the different points are noted and which we are going to consider in the facial measurements. Introduction. Somatometry, it is a division of anthropometry. It is defined as a systemic technique to measure the living body including hand and face. Anthropologists have formulated number of measurements for describing the morphology of men. They are useful in various kinds of men living in different geographical areas, that is for facial comparison or to study the body types. Techniques. There are certain positions in the human body which hold importance while taking measurements. So there are three different planes which we are going to consider. The first is front horizontal plane, then second mid sagittal and the third median. Front horizontal plane, it is used to orient a human skull or head such that the plane is horizontal, also known as eye-ear plane. It is a horizontal plane which is categorized in profile by a line in which the lowest portion or the margin of the orbit of eye and the highest point on the margin of auditory meatus or the external auditory canal. मतलब इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक प्लेन है विच इज ऑल्सो नोन एज द आई ईयर प्लेन. अब इसे आई ईयर प्लेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में वी आर कंसिडरिंग एन लाइन. जो भी हमारे आई बॉल है उसके सबसे आई ऑर्बिट है उसकी सबसे नीचे वाले पोर्शन से ईयर के हाईएस्ट पोर्शन तक वो टच करती है एंड दैट प्लेन इज रिफर्स एज फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन. Mid sagittal plane, it is a vertical plane which passes through the body in such a way that this is parallel to the median plane. मतलब एक vertical plane है जो body से pass होगा और it will be parallel to the median plane. Median plane, it is a plane which passes longitudinally through the middle of the body from front to the back in such a way that it divides the body into राइट एंड लेफ्ट हाफ्स. मतलब मीडियन प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडनली हमारी बॉडी में रन करेगा और उस तरीके से वो हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा. दो हाफ बन जाएंगे, एक राइट एंड द सेकेंड इज द लेफ्ट. Here up in the figure we can see the first figure shows this, that is the frank front, that is we are taking the lowest point or the आई ऑर्बिट में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इधर, वहां से ईयर के हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल के पास. देन ऑन द अदर पार्ट वी कैन सी द फ्रंटल प्लेन, median plane and the horizontal plane, and the plane which is dividing the body into the halves or which is going longitudinally towards the body, that is a sagittal plane. यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं द फर्स्ट वी हैव सी द फ्रैंकफ्रंट प्लेन और द आई ईयर, और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी को इक्वली कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड अदर साइड दे बोथ आर पैरेलल टूवर्ड्स ईच अदर. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सोमेटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स. और सोमेटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स में जो हमने फर्स्ट थिंग कंसिडर की है, या तो हम लोग फर्स्टली एक एक पॉइंट के थ्रू जाएंगे. द फर्स्ट इज द हेड लेंथ. अब हेड लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो हेड लेंथ का जो पॉइंट है वो है G2OP. G रिफर्स टू द ग्लैबुला और OP है वो ऑपिस्ट क्रैनियन. इट इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन ग्लैबुला एंड ऑपिस्ट क्रैनियन that is the most projecting point on the dorsal surface of the head in the mid sagittal point. मतलब जो भी इनका जो एक लीनियर डिस्टेंस वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम ग्लैबुला टू ओपिस क्रैनियन, और उनके बीच में जो एक क्या है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्टिंग पॉइंट मतलब आउटवर्ड्स होगा वो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं. ग्लैबुला, इट इज़ द पॉइंट ऑन द
protuberance of the lower forehead above nasal root and between the eyebrow ridges intersecting by mid-sagittal plane. That is, it is the most anterior point of the median plane between the eyebrows. ग्लैबेला पोर्शन है वो क्या होगा कि हमारे जो दोनों आईब्रोज के बीच का पोर्शन है हम उसे ग्लैबेला कहेंगे और वो सबसे ज़्यादा आउटवर्ड पोर्शन हम लोग कह सकते हैं और जो मीडियन प्लेन के बिटवीन में आएगा मोस्ट एंटीरियर पार्ट सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ होगा. ऑपिस्ट क्रैनियन इट इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पॉइंट on the posterior protuberance of the head in the mid-sagittal plane, that is, the point on the back of the head farthest away from the glabella in the median plane. It is not anatomically fixed point. और ऑबिस्ट क्रैनियन है वो सबसे ज़्यादा मतलब पोस्टीरियर साइड ऑन द बैक पोर्शन जो भी हमारे हेड का है उसमें सबसे ज़्यादा जो बाहर की तरफ पोर्शन होगा और बिल्कुल ग्लैबेला के एकदम ऑपोजिट साइड से मतलब एकदम दूर सबसे ज़्यादा दूर का जो पॉइंट है वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट. और ये एनाटॉमिकली फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है. इट विल डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर पर्सन. नाउ विच इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर द मेजरमेंट? इट इज़ द स्प्रेडिंग कैलिबर विद द ब्लंट एंड्स एंड स्किन मार्किंग पेंसिल. अब ब्लंट एंड्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज जो भी हमें स्कल मिला होगा या तो फिर जो भी रिमेन्स मिले हैं वो उतने वेल कंडीशंस में नहीं होंगे, उनको कोई डैमेज ना पहुंचे, उस वजह से हम लोग ब्लंट एंड के जो कैलिपर्स होंगे वो यूज करेंगे. द पॉइंट ओवर हियर इज द ग्लैबेला पोर्शन एंड ये है जो ऑबिस्ट क्रैनियन है. अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो कंसिडर करेंगे एंड वी वुड टर्म इट एज हेड लेंथ. हेड ब्रेथ. अब हेड ब्रेथ है इट इज मेजर्ड द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू यूरिया or the maximum distance or the maximum breadth taken at the right angles to the mid-sagittal plane wherever found. दो यूरिया के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट डिस्टेंस को हम लोग हेड ब्रेथ टर्म करते हैं और राइट एंगल पे लिया जाता है मिड सजाइटल प्लेन जहाँ पे भी होगा उससे. और अब यूरियन क्या होता है? इट इज़ द लेटरल मोस्ट पॉइंट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द हेड, दैट इज द साइड्स ऑफ द हेड. Again, it is not anatomically fixed point. Lateral most point है हमारे मतलब head portion में. Here on we can see the urea और ये भी anatomically fixed point नहीं होगा और दोनों sides पे होगा. यहाँ पे भी हम लोग है ना spreading calibers with the blunt end use करेंगे ताकि कोई damage person को या तो फिर जो भी हमें skeletal remains मिले उसको कोई damage ना हो. So we are using the blunt end instruments. Bizygomatic breath, that is from zygote to zygote. It is measured the straight distance between two zygia landmarks, the most lateral point on the zygomatic arch. The greatest breadth of zygomatic arch is found near the ear and not on the cheek. मतलब जो भी हमें ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा ब्रेथ जो मिलेगी वो चीक्स पर नहीं और ये दो ईयर के पोर्शन हियर ऑन वी कैन सी द एरो और हियर ऑल्सो वी कैन सी अ लाइन. जो भी जो ईयर के पास है हमें सबसे ज़्यादा ब्रेथ वहाँ पे मिलेगी ना कि चीक्स पर. zygote, it is the lateral most point of the zygomatic arch, one on each side, and it is also not anatomically fixed point. That would also depend on the persons or the remains that we have got from the crime scene. For this also we are using the spreading caliber with the blunt end, so the damage or the less damage would occur to the remains or the person. Now nasal length. Nasal length is taken from the nasion to the pronasal. It is a straight distance between nasion to pronasal. Nasion, it is a point on the nasal root intersected by mid-sagittal plane. Nasal root is not the depression of the nose but the intersection of the internal nasal sutures from frontal nasal suture, which can be felt by slightly probing the root of the nose. Just apply a moderate pressure
below your glabella, and you will notice a sharp kink. Note that nasion usually lies in the level of the medial end of the eyebrows, mostly on the lower margins and not on the height of eyebrows. मतलब eyebrows के नीचे जो थोड़ा सा portion है, from that the nasion points है, वहां से, और pronasal, it is the most anteriorly placed point on the tip of the nose in the mid sagittal plane. अब इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं वो है स्लाइडिंग कैलिपर विद द ब्लंट एंड्स, स्किन मार्किंग पेंसिल, स्पिरिट एंड कॉटन. नेजल लेंथ, जो हमने देखा था कि स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन नेजियन टू प्रोनेजल, ये पॉइंट है वो नेजियन है, एंड हियर ऑन वी कैन सी द प्रोनेजल पोर्शन. यहाँ से यहाँ जो हम लोग करेंगे वो नेजल लेंथ होगी, ये पॉइंट से यहाँ तक द सर्कल वी कैन सी ऑन द टिप ऑफ द नोज. फिर नेजल ब्रेथ का भी हमने इश्यू दिया है, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज अलारे. और नेजल हाइट है वो हमारे यहाँ पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वहां से नेजियन तक का. नेजल ब्रेथ, that is the straight distance between from one alare to the another alare, the most lateral points of the nasal wings. मतलब जो भी nasal wings के सबसे lateral point है, या तो सबसे maximum distance, और तो या तो फिर हमें जो maximum measurement मिलेगा वो points होगा, उसे हम consider करेंगे alare. It is the lateral most point on the outer surface of nasal wing on the either sides. The instrument we are using for the measurement, that is the sliding caliper with the blunt ends. LRA portion, ये जो साइड में जो हम लोग दो पॉइंट्स देख रहे हैं, that are the two LRAs. हम लोग वन LRA से दूसरे तक हम लोग जो भी मेजरमेंट लेंगे, that would be termed as nasal breadth. Sixth point, nasal height. Nasal height हम लोग क्या करेंगे, measures the straight distance between nasion, जो हमारे आईब्रो के या तो फिर ग्लैबुला पोर्शन के जस्ट थोड़ा सा नीचे था वो, टू द सब नेजल, यानी जो भी नीचे जो भी लोअर मार्जिन पे होगा पॉइंट उसमें. नेजियन, इट इज अ पॉइंट ऑन द नेजल रूट इंटरसेक्टेड बाय द मिड सजाइटल प्लेन. नेजल रूट इज नॉट द डिप्रेशन ऑफ द नोज बट एन intersection of internal nasal suture and front nasal suture, which can be felt by slightly probing the root of the nose. That is, just apply a moderate pressure below your glabella and you will notice a sharp kink. Note that nasion usually lies in the level of the medial end of the eyebrows, mostly on the lower margins and नॉट ऑन द हाइट ऑफ द आईब्रोज. मतलब जो भी हमारे आईब्रो की हाइट है वहां पे नहीं होगा, उससे स्लाइटली नीचे होगा, यानी लोअर मार्जिन पे. सब नेजल, इट इज द पॉइंट वेयर द लोअर मार्जिन ऑफ नेजल सेप्टम, यानी कि जो हमारे दो नोस्ट्रल्स हैं उनके बीच में, मीट्स द इंटीग्यूमेंट ऑफ द अपर लिप. अपर लिप के यहाँ पे जहाँ पे वो मीट करता है वो पॉइंट है. दिस पॉइंट शुड बी सॉट वेयर द टेंजेंट drawn to the nasal septum meets the upper lip. उसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने जा रहे हैं वो है स्लाइडिंग कैलिपर विद ब्लंट एंड्स, स्किन मार्किंग पेंसिल, स्पिरिट एंड कॉटन. जो 7th पॉइंट है सोमेटोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स में वो है बॉडी वेट. वेट शुड बी टेकन बाय द मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड वेइंग मशीन विद फाइन एक्यूरेसी. जो भी स्टैंडर्ड वेइंग मशीन से उससे ही लेना चाहिए, और फाइन एक्यूरेसी, देयर शुड नॉट बी एनी एरर कि हमें कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी गलत मेजरमेंट्स मिले. द वेट शुड बी टेकन विद मिनिमम क्लोथ्स एंड बेयरफुट. मिनिमम क्लोथ्स होने चाहिए एंड शुड बी बेयरफुटेड, नो शूज और स्लीपर्स और एनीथिंग शुड बी देयर. बॉडी वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स विच गिव्स एन आइडिया ऑफ बॉडी मास. और जो बॉडी वेट है हमारा वो हमेशा किलोग्राम्स में मेजर होगा, तो हमारे बॉडी मास के बारे में वो कुछ आइडिया दे सके. इंस्ट्रूमेंट इज द वेइंग मशीन. अब उसके मेथड क्या है, हमें बॉडी वेट का जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं उसका मेथड कैसे हमें करना है आगे. एडजस्ट द नीडल ऑफ वेइंग मशीन और द वेइंग स्केल टू रिमूव द जीरो एरर. पहले तो हमें नीडल एडजस्ट करना है टू रिमूव द जीरो एरर.
या तो फिर कुछ भी काइंड्स ऑफ एरर है या तो कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें पहले नीडल को एडजस्ट करना है. देन आस्क द सब्जेक्ट टू स्टैंड ऑन इक्वल वेट ऑन द बोथ फीट. द हेड ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी फॉरवर्ड. अब जो भी हम लोग सब्जेक्ट यानी जो पर्सन या तो फिर जो हमें बॉडी मिली है तो कुछ भी है तो उसका वेट हमें लेना है, तो उसमें हमेशा उनको ऐसे पोजीशन पे रखना है कि दोनों फीट पे इक्वल वेट आए और हेड हमेशा फॉरवर्ड हो उनका. नोट द रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल व्हेन द नीडल इज स्टेशनरी. और जब भी नीडल स्टेशनरी हो तभी, अगर वो थोड़ा भी इधर उधर मूव करना है, वी वुड नॉट नोट दैट रीडिंग. बट जो भी जहाँ पे नीडल एक जगह स्टेशनरी हो जाए तभी हमें रीडिंग नोट करनी है. देन स्टेचर. स्टेचर जो है वो हम लोग मेजर करेंगे फ्लोर टू वर्टेक्स. इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैंडिंग फ्लोर टू द वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है अभी? इट इज द हाइएस्ट पोर्शन on the head when the head is in the Frankfurt horizontal plane, also termed as the eye-ear plane. Vertex is not anatomically fixed point and it is dependent on the orientation of the head. जो भी हमारा हम लोग स्ट्रेचर है यानी वी कैन से द हाइट, जो भी हम लोग हाइट मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा जो स्टैंडिंग फ्लोर होगा वहां से लेके वर्टेक्स पॉइंट तक हम लोग मेजर करेंगे. अब वर्टेक्स पॉइंट क्या है? तो वो एक हाईएस्ट पॉइंट है जब भी एक इंसान फ्रैंकफ्रंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, कि मतलब एक सीधा खड़ा है, उसका स्ट्रेट फेस है और जो भी हाईएस्ट पोर्शन होगा हमारे हेड का हम लोग वो मेजर करेंगे. और वर्टेक्स भी कोई एनाटॉमिकली फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, वो एक इंसान के जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके ओरिएंटेशन ऑफ हेड पे डिपेंड करेगा कि उसका किस तरह से ओरिएंटेशन है, उस पर डिपेंड करता है. द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर द स्ट्रेचर एस्टिमेशन इज द एंथ्रोपोमीटर. अब उसका मेथड क्या है, हमें कैसे खड़े रखना है उस इंसान को, या तो फिर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो कौन से मेथड्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे सो दैट वी विल गेट द एक्यूरेट और द वी कैन से द मोस्ट प्रिफरेबल और द सबसे ज़्यादा जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उस टाइम पे वो हमें रीडिंग मिलेगी. तो स्ट्रेचर एस्टिमेशन के लिए जो भी हम लोग पॉइंट्स फॉलो करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट, आस्क द सब्जेक्ट टू स्टैंड इरेक्ट barefoot on the level floor against the wall with his or her back or the buttocks touching the wall. Take care that heels are touching the wall and toes are at the angle of 45 degree to each other. मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसे सीधे खड़े इरेक्ट, तो सीधा खड़ा रहना है बैरफुट, और जो भी उसका फ्लोर का लेवल है उससे जो भी बैक है उसका और बटक्स है उसे वॉल्स के साथ टच होना चाहिए. जो हमारे हील्स है वो भी वॉल्स के साथ टचिंग होनी चाहिए और टोज का जो एंगल होना चाहिए एक दूसरे से दैट शुड बी द 45 डिग्री टू ईच अदर. द शोल्डर शुड नॉट बी रेज्ड अपवर्ड्स. द आर्म शुड बी इन अ स्टैंडर्ड आर्म हैंगिंग पोजिशन एंड द पाम्स ऑफ द हैंड शुड टच द थाइस. अभी सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, तो शोल्डर्स इधर उधर नहीं होने चाहिए, ना ही उसे अपवर्ड रेज करना है. देन जो हमारे आर्म्स है वो स्टैंडर्ड जो आर्म हैंगिंग पोजीशन है मतलब डाउनवर्ड उस पोजीशन पे होने चाहिए जो और हमारे जो पाम्स है उसे थाई से टच करना है. देन वी विल प्लेस द एंथ्रोपोमीटर रॉड ऑन द बैक ऑफ द सब्जेक्ट इफ द वर्टिकल वॉल इज नॉट अवेलेबल. अगर कोई वर्टिकल वॉल अवेलेबल नहीं है तो हम जो हमारा एंथ्रोपोमीटर का रॉड है उसे वो सब्जेक्ट के बैक हम लोग प्लेस करेंगे एंड वी विल नोट इट. The head of the subject must read without any strain in the eye-ear plane or the Frankfurt horizontal plane, that is tarsian and at the trajan, and the right orbital must lie in the same horizontal plane. मतलब जो हेड होगा उसे मतलब कोई भी स्ट्रेन के बिना हमें उसे आई-ईयर प्लेन में रखना है. Now the position of the subject said, you stand on the right side of the subject with the anthropometer in the mid-sagittal plane of the subject and allow moving crossbar to touch the vortex lightly. अब जो भी हम जो मेजरमेंट लेंगे तो हमें क्या करना है, वो सब्जेक्ट के राइट साइड खड़े रहना है एंड एंथ्रोपोमीटर होगा उसे मिड सजाइटल प्लेन से अलाउ करेंगे कि वो उसे क्रॉस बार करे और वो नीचे जाके
मतलब वो हमें जो स्टैंडिंग एक पोजीशन था वो नीचे से ऊपर जाके वर्टेक्स तक धीरे धीरे मूव करे। एंड नोट द एंथ्रोपोमीटर इन इट्स वर्टिकल पोजीशन, जो भी वर्टिकल यानी सीधी एक पोजीशन है उसमें हमें नोट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द सिटिंग हाइट। सिटिंग हाइट और हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट था, हम उसी के बीच में जो मेजरमेंट है वो हम लोग करेंगे। इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स from the plane of sitting surface of the subject when stretched, that is when the vertebral column is stretched to the maximum. अब हमने वर्टेक्स ऑलरेडी देख लिया है कि जो भी एक हाईएस्ट या तो फिर एक जो सबसे ज़्यादा जो प्रोट्रूडिंग या तो ऊपर की तरफ जो हमारा हेड का पॉइंट होगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो पॉइंट है जो हेड के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अब सिटिंग हाइट हमें कैसे लेनी है, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मैक्सिमम जब स्ट्रेच होगा ना वो हाइट हमें नोट करनी है। इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज होगा वो है एंथ्रोपोमीटर। नाउ द मेथड्स टू एस्टिमेट द सिटिंग हाइट, हमें कौन से मेथड फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, आस्क द सब्जेक्ट टू सिट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रेफरेबली ऑन अ टेबल, जो टेबल है उसकी हाइट होनी चाहिए 30 to 40 सेंटीमीटर। Orient his or her head in a higher plane and the body stretched to the maximum. Note the shoulders should run parallel, the thighs should be almost horizontal, and the legs hanging from the table with back of the knee touching to the vertical surface of the table, and also not allow don't allow the knees to bend. अब इसमें क्या होगा कि हमने तो पहले हमने प्लेन लिया है और एक टेबल है जो 30 से 40 सेंटीमीटर हाइट पे होगा, फिर उसका हेड होगा वो परफेक्टली एक स्ट्रेट प्लेन में, या तो फिर जो कंसिडर करें हायर प्लेन में होना चाहिए, और बॉडी है वो मैक्सिमम स्ट्रेच होनी चाहिए। द हैंड शुड रेस्ट ऑन द थाइज एंड द palm फेसिंग डाउन। Anthropometer should be held at the back of the subject aligned to the vertebral column and bring down the movable crossbar on the vertex and note the reading. जो हैंड्स है हमारे वो थाइस पे होने चाहिए रेस्टिंग पोजीशन, और जो पाम्स है वो फेसिंग डाउनवर्ड तरफ वो फेस करना चाहिए। और उसके बाद हमें जो भी रीडिंग्स मिलेगी जब वर्टिब्रल कॉलम के हम लोग अलाइन हम लोग सब्जेक्ट को करेंगे एंड वी वुड रन द एंथ्रोपोमीटर फ्रॉम देयर, और जो भी रीडिंग मिलेगी वो हमें नोट करनी है। Now, what are the precautions? The subject should be sitting erect and legs hanging freely from the table at the angle of 90. जो भी सब्जेक्ट था उसे इरेक्ट रहना है और उसके जो लेग्स है वो हैंगिंग पोजीशन पे यानी फ्रीली होने चाहिए, कोई भी उस पर स्ट्रेस या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड टेबल एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज द राइट एंगल। Head should be oriented in the higher plane. The hand should be resting from the palm facing the thighs. Now we are moving to the morphological facial height. It measures the straight distance between, that is the nasion and nathion. Nasion, we have seen that the portion between the eyebrows in the lower margin, and the nathion is the point or the lowest point on the lower margin of the mandible in the mid sagittal plane. Here we can see the nasion and here the lowest, जहाँ पे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा इन द मिड सजाइटल प्लेन, जो मैंडिबल के सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो है नेथियन। तो हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट जो हम लोग मेजर करते हैं वो नेजियन से नेथियन के बीच में होगा। फोरहेड वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट। नाउ हियर वी कैन सी अ स्मॉल समरी दैट वी कैन सी। तो हेड लेंथ है, जो हेड लेंथ हमने मेजर किया था दैट वाज बिटवीन द glabella and opus cranion, head breadth between the two urea, bizygomatic breadth between the zygote, nasal length that was between the nasion to the nasal breadth to alare, or the we can see the most or the maximum portion between the alare, nasal height between the nasal and the subnasal, body weight that we have used the weighing machine only, then stature that is from the floor to the vertex,
sitting height from the sitting surface of the table to the vertex, then morphological facial height that was between the nasion and the natron. Thank you and keep visiting Science Hub for such more interesting videos about forensic science and biology.